In today's video, we are going to talk about why choosing a guy based on his financial status is not at all a superficial move. Many women, when they say that yeah, the guy that I want to date should be rich, and they're looked up and down like that. They're told all kind of things that what makes you think he will want to date you. That I still agree to some level, but then there comes these kind of statements like, okay, then you're very materialistic. I see. Are you a gold digger? That's all you care for. You're not romantic. You don't care about love. Just give that guy a chance. Just give that guy a chance. Like these kind of things people tell these women which want better life for themselves as if it's a crime, right? And guys definitely out there lose their shit when they hear something like this, right? Now today's video we are going to talk how deep it is to have that standard of just one standard that a guy should not be broke. He should be making good money to marry, to have kids or whatever if the woman wants that, right? So how this standard is actually really deep. Okay, so this video later on you can even use to send to those women which look you up and down and think that that decides nothing, money doesn't tell us anything about the marriage. It actually tells a lot. I am not saying in this video that money is the only thing you should check, but it's a really important thing for you to check. Let's get into it. First thing, if the thing is, this guy, okay, who is not rich and wants to marry, this is the situation we got. Okay, somebody who thinks he has the power of love even if he's broke or whatever, or doesn't make great money to afford a marriage. इंडिया में बहुत सारी शादियां जो हैं माँ बाप करा रहे हैं, राइट? वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हुए हैं कि वो शादी करा रहे हैं. बंदा खुद की उसकी औकात नहीं है कि आपको ले जाके वो शादी कर सके आपसे, राइट? कोर्ट मैरिज के अलावा. और राइट, so he cannot even give you the wedding of your dreams. Now these kind of guys, when they think that yeah, they are fit because they got love and they are doing okay, and we can make it work somehow. You see how they start using this word that we can make it work. That's how your unpaid labor starts. That you would also have to chip in. This is how the 50-50 starts and everything, right? So the first thing is that these guys do not have a good connection with reality itself. They do not know what they are talking about. They are speaking from a place of entitlement. कि मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे प्यार का हक नहीं है? मैं क्या प्यार नहीं कर सकता? अरे बेशक करो प्यार, पर उससे शादी मत करो, क्योंकि तुम शादी बिल्कुल नहीं कर सकते. तुम शादी के खर्चे नहीं उठा सकते, तुम एक बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते, तुम बच्चों के खर्चे नहीं उठा सकते. तो क्यों इसमें मुंह मार रहे हो? प्यार करो ना, फॉलो करो ना कई सारी लड़कियों को, देखो उनको आराम से, दूर से देखो, पास से देखो. डेट पे ले जाने का पैसा है तो डेट पे भी लेके जाओ. उनको बता दो शुरुआत से कि भाई मेरे पे शादी वादी करने का तो पैसा है नहीं, यही मैक्सिमम मैं दे पाऊंगा. एंड आई लव टू स्पेंड टाइम विद वुमेन एंड वी ऑल नो मेन डू इट for having some access to feminine energy, and there are more than number of women that will be ready for dating just for fun. They're like, yeah, sure, who wouldn't like to go on fun dates with guys, spend time with him, and he can also get to feel that, at least for a date he gets to feel that how does it feel to be with a woman, because he cannot afford to have it 24/7. He cannot have a wife, right? And when I say these dates, I hope you guys know, as you know this channel, when I say dates, there is nothing touchy physical sexual things happening there. All right, so when I say dates, it's just like experience with that woman. That's maximum you get. You get to spend time, you get to do maybe some fun activities, I don't know, amusement park or whatever, but yeah, you don't get to experience her and get a sexual release out of that woman when you don't have what it takes to get her. All right, so that is one thing. So he's not at all in touch with the reality. He does not have just the man who does not have a plan for himself. Why is he still broke, right? They say this thing that you're born broke, not a problem, but you're dying broke, that's definitely a problem. You're like, he's not dying, but somebody who thinks he's entitled to marriage, he's entitled to love, he's entitled to having a woman, he should also have. Even if he's broke, that doesn't change anything. That kind of thought process is exactly what I'm telling, disconnected from reality. Because उसे शादी दिख रही है, शादी के बेनिफिट्स दिख रहे हैं, पर उसको ये नहीं दिख रहा कि शादी में खर्चा भी होता है, हर चीज़ का खर्चा होता है. औरत को रखना है साथ में,
but he doesn't know how much it costs to keep a woman happy, how much it costs to keep a woman healthy, how much it costs to keep a woman beautiful, how much it costs to keep a woman's life stress free, right? He doesn't have money for all your vacations, he doesn't have money for your beauty treatments, he's not able to keep you beautiful. That's why those kind of memes are there, no, कि बाप के घर में ऐसी दिखती थी और हस्बैंड के साथ ऐसी दिखती है, then people will be like, yeah, husband के पास आके पता नहीं क्या हो जाता है. That's a shitty husband. That's why I know many women that look way beautiful, like, after they got married, because they are not married to shitty husbands. That's the thing. So this guy, first of all, if you're marrying a broke guy and he thinks he's entitled for love and marriage and to have you, even if he has not have money sorted, he is disconnected from reality. He doesn't know what he is talking about. बिकॉज उसको मैरिज के खर्चे नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा. इज जस्ट लाइक, नहीं यार ये तो ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही करते हैं, सब मैनेज ही करते हैं, हम भी कर लेंगे. मेरे भाई के घर में भी ऐसे मैनेज करते हैं लोग, थोड़ा वो कमाती थोड़ा वो कमाती है, ये इंसानियत है, यही तो है. यू आर जस्ट बीइंग सो इंटाइटल्ड ये है जिसको लगता है कि बिना कुछ करे इसको फ्री में बीवी मिलनी चाहिए. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. दे प्ले उनो रिवर्स ऑन यू. दे डू नॉट हैव अ प्लान फॉर, अगर आज तक इनकी खुद की लाइफ, शादी करने की बातें ये कर रहे हैं, खुद की लाइफ फिगर आउट नहीं कर पाई है इस लेवल तक कि खुद को एक कंफर्टेबल लाइफ दे पाए है. किसी और को क्या घंटा ये देंगे वो लाइफ, राइट? खुद का बंदा जो प्लान नहीं बना पाया, उसके पास आपको लगता है आपके लिए कोई प्लान होगा? मोस्ट लाइकली नॉट. ही डजंट हैव अ प्लान, ही इज नॉट इन टच विद रियलिटी, ही डजंट हैव अ प्लान फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज फकिंग एंटाइटल्ड. बिना कुछ सॉर्ट करे ही थिंक्स मुझे बीवी मिलनी चाहिए. कोई योजना चला रखी है गवर्नमेंट में सबको भी मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? सो पुअर प्रायोरिटी ऑल्सो, बिकॉज अपने डिज़ायर को ऊपर रख रहा है. भाई काम धंधा कर, कुछ ढंग का बना ज़िंदगी में, कुछ काम कर, राइट? कोई स्किल सेट बना. क्यों नहीं लोग पैसा देंगे. इसके बाद कोई इतना भी बुरा टाइम नहीं चल रहा है कि एक अच्छे इंसान की जो सच में कोई एक तरीके की स्किल लाता है टेबल पे, उसको काम ना मिल रहा हो, राइट? लोग तो आज किस तरीके से कमा रहे हैं, राइट? सो सब कुछ अवेलेबल है, तुझे मेहनत नहीं करनी, एंड यू हैव टू जस्ट बी एंटाइटल्ड लाइक दैट. दैट इज़ व्हाट दिस गाय इज. ओके, नेक्स्ट इज कंपनीज को भी जो दिखता है वो आप नहीं देख रहे हैं. ये इतने टाइम से अनएम्प्लॉयड क्यों है? हिज एम्प्लॉयर्स नो मोर देन यू दैट ही इज इन शिट, ही इज इन गुड, दैट्स व्हाई ही इज अनएम्प्लॉयड, ही इज नॉट गेटिंग प्रमोटेड. आस्क हिज बॉस, ही विल टेल यू, राइट, कि ये किस तरीके से काम करता है, नहीं करता है, और क्यों लेवल अप नहीं कर पा रहा है, इसकी क्या कमियां हैं, राइट? क्योंकि कंपनीज बेवकूफ़ नहीं है ना कि किसी को भी इतना पैसा दे देंगी, किसी को भी जॉब दे देंगी, राइट? सो वो कंपनीज को भी पता है कि ये काम का नहीं है, और ऐसे बंदे को आप क्यों इस पे चैरिटी करने वाले हैं, राइट? जिसके माँ बाप ही दुखी हैं कि भाई ये हमारी औलाद है, इसको आप तो जब चूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द ओनली रिलेशनशिप इन योर लाइफ दैट यू गेट टू चूज़, देन दिस इज व्हाट यू चूजिंग. एंड देन that he is weak professionally, and in most cases professionally तब भी शायद ठीक हो बंदा, personally he is weak. मे बी हेल्थ का अच्छा ख्याल नहीं रखता है, राइट? या फिर गुस्सा बहुत तेज़ है, कि एंगर इश्यूज़ बोलते हैं, राइट? कि कई सारी जगहों से. देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, उसके पापा थोड़े भी दिन किसी जगह पर रहते हैं, वहाँ से उनका तबादला हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी से झगड़ा कर लेते हैं, फिर तबादला हो जाता है. ऐसे कर करके, मतलब दैट काइंड ऑफ अ करियर ही इज़ अ प्रोफेसर. He could have actually been in one place for 20 years, 30 years if he wanted to. But हर थोड़े दिन में उनका जो है ट्रांसफ़र होता रहा. ऐसा इसीलिए क्योंकि he doesn't have basic skills of communication, right? अच्छे से कम्युनिकेट करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं आता. ऐसे लोगों की भी जॉब जाती रहती है. तो पर्सनली और प्रोफेशनली भी इंसान वीक है, वरना जो अबंडेंस की एनर्जी है उससे आने तक उसे कोई रोक नहीं सकता था, राइट? सो दे विल से थिंग्स लाइक बस ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया या लक ने साथ नहीं दिया. तो भाई एज ए एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो आई विल टेल यू कि जिसके इतने तारे गर्दिश में हैं, इनके साथ क्यों एसोसिएट करना है, राइट? व्हेन यू कैन चूज, व्हाई वुड यू चूज दिस? ओके, नेक्स्ट इज लाइफ का मैनेजमेंट भी इन लोग का पुअर हो सकता है. जो सोचो जिसके पास पैसा नहीं है और वो सपने देख रहा है कि मैं भी खुश रहूँगा, एक दिन लव रोमांस सब होगा हमारी लाइफ में, रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है, एंटाइटल्ड है, वीक है पर्सनली और प्रोफेशनली, उसकी प्रायोरिटीज़ पूरी हेवायर हैं. वो पर्सन लाइफ के डिसीजंस किस तरीके से ले रहा है, लाइक मैरिज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ. उसको इतना अनप्रिपेयर्ड होकर जब ये ले रहा है, और ये सेम औरतें बाद में मेरे पास आएंगी, दिल भी लाइक
उसने तो कुछ प्लानिंग नहीं करी, हमारा बच्चा ऐसे ही हो गया और हमारे बच्चे के लिए कुछ उसने अरे यार उसने तुम्हारे लिए नहीं सोचा था, वो बच्चे के लिए 1 घंटा सोचेगा? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम कुछ दिखता नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे? एग्जैक्टली। सो उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, उसको जो चाहिए, उसको बंदी चाहिए, उसको मिल गई, उसको सेक्स चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसको पका हुआ खाना चाहिए, चाहे वो गरीब है उसको चाहिए, पर इंटाइटल है, राइट? आप उसको वो सब प्रोवाइड करते जा रहे हो। नाउ हाउ कैन यू आस्क बैक एनीथिंग? because that was never in the contract, right? He never agreed that I'm gonna give you stuff. He's like, we will manage. That means you will manage. I deserve everything, so that's how it is. Now ये लोग नेक्स्ट रीजन है कि ये बंदे जो हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करते हैं। डिफ्लेक्ट का क्या मतलब यहाँ पे? कभी भी इसको खुद ये नहीं लगा कि भाई मेरी उम्र के सारे लोग कहाँ निकल गए, राइट? कितने साल आगे निकल गए मुझसे, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने कर ली, मैं यहाँ हूँ तो क्यों हूँ? रिफ्लेक्शन की एबिलिटी है नहीं। ये ऐसी चीज़ें बोलेंगे, मेरे लक ने साथ नहीं दिया, जैसे मैंने बोला ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया, ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करेंगे किसी और चीज़ पे। और अभी आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं माँ बाप पे, लाइफ पे। मेरा खुद का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं इतनी ही सक्सेसफुल इसलिए बन पाई क्योंकि मेरे माँ बाप, अरे भाई मेरे माँ बाप जैसे थे वो उस टाइम का मेरा पेन का है, पर उसके बाद आई नो व्हाट आई एम, आई नो व्हाट आई डिजर्व, आई एम गोना गो फकिंग गेट इट। चाहे उसकी वजह से मतलब मुझे बहुत नेगेटिव से शुरू करना पड़ा, कोई फ़र्क नहीं है, मुझे मेरी पावर पता है, मैं कर लूँगी। और कभी भी एक लेवल का भी मेरे को वो शिकवा नहीं रहा कि क्या कहते हैं मुझे इतना नेगेटिव से शुरू करना पड़ा। इट्स मी इन दी एंड एंड आई कैन टेक इट वेर एवर। और अगर वो और स्पिरिचुअली ऑल्सो आई एम awakened to that level, I know that if that's the parent I got, that's because my soul chose that. So it's not like I'm not like a victim here. Yeah, at a human level you can feel that. Spirit level makes me feel positive, so everything's fine. But जो बंदा आज तक बिल ही फाड़ रहा है, मतलब एक तरफ उसको बीवी चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, वो बिल फाड़ रहा है सोसाइटी पे, अरे पॉलिटिक्स है, वो गवर्नमेंट ऐसी है, पर ये ऐसा है, वेदर ऐसा है, अरे मार्केट ऐसा है। कल को आप भी इसी क्लाइम में शामिल होने वाले हो। जब आप ऐसे बंदे से शादी करोगे ना तो ये बोलेगा तुम ऐसी हो इसीलिए मुझसे नहीं होता। जो आज ऐसी बातें कर रहा है उसको कितनी देर लगेगी आपको भी इसी क्लैन में घुसाने के लिए? ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं लगेगी। एंड दिस गाइज टॉक लाइक दिस कि तुम शुरुआत में तो तुम बहुत अच्छी थी, अरे पता नहीं क्या हो गया, मतलब कुछ तो हो गया है, तुम चेंज हो गई हो, अब तुम मुझे मोटिवेट नहीं करती हो, अब तो ऐसा नहीं है, अब वैसा नहीं है। एंड दे विल बी लाइक या तुम ऐसी हो इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। भाई मुझसे पहले और मैं चली भी जाऊंगी उसके बाद भी 2 घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, इतना मुझे पता है। बिकॉज क्योंकि मेरे ऐसे इतने सारे केसेस हैं। मतलब मेरी रिसेंटली क्लाइंट का डिवोर्स जो है फाइनली हो गया है। सो हर हस्बैंड वाजंट शिट बिफोर एंड शी स्टे टू गिव हिम मनी, हेल्प हिम सर्वाइव, मेक फूड फॉर हिम, एवरीथिंग। ही वॉज जस्ट लिविंग अ sassy princess's life. And now that girl, she took therapy from me, she understood so many things, she filed for divorce, she got the divorce. That guy is in shit still. थोड़े बीच के टाइम में उसकी लाइफ ठीक इसलिए दिख रही थी because there was a woman who believed in him, gave her feminine energy, gave the real money, everything she brought to the relationship so he could have a good life. वो खुद के बल पे तो घंटा कुछ ना पहले कर पाया ना बाद में। शादी में तो क्या ही करता, शादी में तो उसको लगा उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लड़की है तो ये करेगी सब। उसको लगा था ये इसको बेवकूफ़ बना लेगा ज़िंदगी भर, बट नहीं, आई एग्जिस्ट। अब कोई लड़की बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। नाउ नेक्स्ट इज, सो ये लोग जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, करते नहीं है, डिफ्लेक्ट करते हैं, इनको सिर्फ दूसरों पे देना आता है। तो तुम ना कभी भी ऐसे बंदे से रिलेशनशिप में आ रही हो, डेट पे जा रही हो, पूरा टाइम उसके पास बस सबके ऊपर डिफ्लेक्ट करने के लिए चीज़ें आएंगी, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसको थोड़ा ऊपर से नीचे तक देखना कि वो कितना ठीक है, राइट? कितना ठीक हो तुम कितना क्या सब सही तरीके से कर रहे हो, तुम अपना तरह से काम कर रहे हो सारे कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि यूजुअली आई हैव सीन पीपल हु इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल और आर सक्सेसफुल, दे डू नॉट टॉक लाइक दिस, दे टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द थिंग्स दैट दे कैन, दे नो इट वेरी वेल। वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, but what we can control, that's where our power is. That's the happy news, right? That's the good news, we can do that, right? They will not be focusing their precious energy on that. Like whose energy is shit like this, they will definitely do that. Now the last thing is that if he can do all these things,
And in this process, that he himself is a shitty guy like this, okay, he doesn't care what will happen to others, because जो इतना कुछ उसके अंदर फकअप है उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है इस, और अपने आप को वो किसी के ऊपर थोपना भी चाह रहा है इसके बावजूद, इवन आफ्टर बीइंग दिस शिटी he wants to have whatever he wants. So you think this guy would care what happens to you in the process? If he would have cared about himself, he would be like, wait a minute, I need to do better in my life, I have some things I need to improve, and he will be working there. He will not be getting a girl into this because he cares about himself. That's why I always tell, never associate yourself with people which do not have self love, because self love जिनके पास नहीं है, जो खुद को प्यार नहीं करते, वो कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते. They're just leeches all the way. Okay, so this guy would not give a shit about what happens to you in the process. He's just like, I can be whatever, how I want to be, and I can still get whatever I want. I can behave however. तुमने मुझ पर विश्वास किया ना, मैंने तुम्हें फोर्स किया था क्या? ये इस तरीके की लाइनें बाद में आएंगी शादी करने के बाद. तुम्हें तो पता ही था मेरे पास तो कभी से कुछ नहीं था, तुम्हें तो पता ही था मैं तो हमेशा से ऐसा था, तुम्हें तो तुम तो बेहतर सोच सकती थी. After he's got whatever he wanted, kids, sex, and now he's like, now I'm bored of marriage because now it's requiring more work and it's not that interesting, before as it was, because नया नया प्यार था, वो तो नहा नहीं है. अब ये ऐसे ही आदमी फिर नया प्यार बाहर ढूंढने जाते हैं, चीट करते हैं. बीवी रखने लायक है नहीं और दूसरी लड़की के पास जा रहे हैं, मतलब एक रखने लायक नहीं है दूसरी के पास जा रहे हैं, साइड चिक रखेंगे. सो इनके इसके चक्कर में साइड चिक जाती जाती है, बीवी भी जाती है, और जिस तरीके की लड़की साइड चिक बनती है वो वैसे भी कहीं रखने वाली नहीं होती है. बट या दिस इज, एंड दे एंड अप इवेंचुअली डूइंग what I said in the starting you should have done. Go. There are so many women which will have sex for fun, which will go on dates for fun, and that's fine. They're their life choice. Yeah, I don't really support the sex for fun because spiritually, right? But date for fun, sure, I support that. You can date just for fun also. Sometimes not everybody here is looking for marriage and husband. Not everybody is looking here. We can spend time with the opposite gender, enjoy quality time, discuss great things, have great adventures, trips, whatever. We can totally do that. So if you don't have money to have a full-time thing with a girl that's a wife, then अपनी औकात में रहो, उसी में शॉपिंग करो. और जो लड़कियों में दिमाग नहीं होगा वो ऐसे लड़कों से शादी करके बाद में रियलाइज़ करेंगी कि हाँ ये तो खाली उसी लायक था, और उसको भी रियलाइज हो जाएगा बाद में. ये आफ्टर देन दिस फर्स्ट मैरिज दीज ब्रोकीज विल बी लाइक, हाँ मैरिज इज़ नॉट माई थिंग, मेरा दिल ऐसे टूटा. बे सीधा बोल, तेरे पास ना पहले रखने का कुछ था और ना अभी है. तेरे को पता है तू कैसा रहने वाला है, यही तेरी लाइफ है. कुछ करना है चेंज तो तू कर लेगा, नहीं करना है तो तूने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे को ऐसे ही जीना है, तो बस यही बोलना. पर ये सच नहीं बोलेंगे, ये आपको समझना है. अगर आप ऐसे किसी के साथ एसोसिएट हो रहे हो तो ये पूरा वीडियो आपके लिए वो चेतावनी. आई वुड इवन टेल इन दी एंड वन थिंग कि मैरिज जो है, मतलब बंदा चाहे जितना भी कमीना हो, मैरिज के बाद लोग बोलते हैं ना सुधर जाता है. उससे ज़्यादा मैंने एग्जांपल्स देखे हैं कि मैरिज हर चीज़ को एम्पलीफाई करती है. बिकॉज मैरिज और लव का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से इसीलिए है क्योंकि दिस इज़ लाइक अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप, राइट. इसमें आपके कोर वूंड्स जो है बाहर आते हैं, जो बने होते हैं आपके चाइल्डहुड के दौरान, जब पहला एक्सपीरियंस ऑफ योर रिसीविंग लव वाज फॉर्मिंग, राइट, रिसीविंग द लव फ्रॉम पेरेंट्स, राइट. और वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आके रिक्रिएट जब होता है तो सारा कुछ ट्रिगर हो जाता है. तो मैरिज ने किसी को, मैरिज एक रिहैब सेंटर तो वैसे भी है नहीं कि मैरिज कर लो तो उससे आप सही हो जाओगे. कोई बहुत ही कम लोग ऐसे कुछ है जो मैरिज से सही हुए हैं. वो सही वो किसी चीज़ से भी हो जाते हैं, उनके केस में जस्ट मैरिज से था, बट डजंट मीन कि या दैट इज़ हाउ व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, राइट. पीपल मैरी बिकॉज, जैसे मैंने एक आपको रिसर्च भी कई सारी कोट करके दिखाई है रिसेंट पोस्ट में कि आदमी कितना बेनिफिट शादी से लेते हैं. उसके लिए बहुत सारे आदमी डेफिनेटली शादी करते हैं, बट शादी से चेंज नहीं होते. वो चेंज होते हैं वो उस औरत से. औरत, लड़कियां मैंने देखी हैं एज ए गर्लफ्रेंड बन के भी इतनी लड़कों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रखी हुई है उन्होंने. उनको कोई शादी की ज़रूरत नहीं है, राइट, बट वो कर सकती है. दैट्स जस्ट द ब्यूटी ऑफ फेमिनिन एनर्जी. इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव लाइक दैट. सो इफ़ यू आर अ वुमन विच इज़ द ओनर ऑफ दैट एनर्जी, why would you give it to a guy like that? That is my question. Now, so just imagine ये सब फकअप है इस बंदे में. मैरिज अगर आप इसके साथ सोचोगे करने के लिए
तो ये सब चीज़ें और एम्पलीफाई ही होने वाली हैं, बद से बदतर होगा। मैंने तो आपको जो बताया है अभी वो बस मैंने शादी से पहले का ही मैंने बताया कि अभी तक इसकी ये हाल है, तो अब ये चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो शादी में ये कितनी एम्पलीफाई होने वाली है। इफ़ I was at your place and only one person I can choose to be my chosen family, I will not be choosing a broke one. So that was the video. Okay, so now you know, by saying that I don't want to marry someone broke or I want to marry a rich guy, that is basic. Of course he has to have, because शादी कितनी महंगी है, वाइफ्स कितनी महंगी हैं, उनको मेंटेन करना कितना महंगा है पता है। जिसको पता नहीं होगा वही इस स्टेटमेंट के लिए ऐसे करेगा कि अरे इसको तो पैसा चाहिए। भाई पैसा लगता है इसलिए चाहिए, फ्री में नहीं होता ये सब। तुम स्पा पार्लर जाओगी, स्कूल जाओगे, वहाँ पे बोलेंगे क्या हमने पावर ऑफ लव के लिए शादी करी थी, लो जी रख लो हमारा बच्चा, जूते मार के निकाल देंगे तुम्हें, राइट। सो नीड टू मैरी रिच, दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट्स सपोज टू बी। सो if anybody shames you for that, send those ones this video. All right, that's it for today. And I have started teaching dating regularly to people now. I'm almost there for the male dating, but the female dating plan is already made and people have already started to take it. So if you are someone which is stuck between a lot of marriage pressure from family and the dating experience is being like shit, then you really need my help. बिकॉज इंडिया में मैरिज इज़ अ रियल बिग डील, राइट। सारे पेरेंट्स को ये है कि हाँ हमने बेटी शादी करनी, शादी करनी, शादी करनी, और मार्केट इतना ख़राब है, तुम्हें देख के लगेगा भाई क्या करूँ मैं, मार्केट इतना ख़राब, प्रेशर इतना ज़्यादा। डोंट वरी, देयर इज़ अ वे and I can show you. I've showed it to many people and they're really happy with it. So yeah, it will be selling either you come or not, but if you come, it's your benefit and I'm just nice enough to share it with you. Alright then, take care, see you in the next one.